A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter 1, Challenges of Nation Building of your book Politics in India Since Independence. In our last class, we discussed about the process of partition. We discussed two difficulties faced by the leaders or leaders, people of Indian citizens and Pakistani citizens, what problems they were facing at the time of partition. Okay, at the especially the leaders. Uh, the process of partition was not so easy. So we have seen how like partition created a problem for citizens of India and Pakistan, present day citizens of India and Pakistan, and even for the leaders at that time. Right, so we have seen the process में कितना problem हुआ है. So today we are going to start with the second topic under the partition, displacements and rehabilitation, and the name of the topic is the consequences of partition. So what are the consequences? What क्या consequences रहे होंगे? So first of all, as you all know, at the midnight of 15th August 1947, India and Pakistan got their freedom. But that freedom was not the real freedom. ठीक है, लोगों का जो ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, बहुत that 1947 partition of India and Pakistan was one of the most traumatic situation in known to our history. तो ये जो 1947 में जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन का ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट वाज सो अब्रप्ट, सो अनप्लान्ड, सो बहुत ही ट्रैजिक ट्रांसफर हुआ था. ठीक है, इट वाज अ ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इन व्हिच इज नोन टू हिस्ट्री. ठीक है, so there were killings and atrocities on both sides of the border, especially eastern पंजाब और आपका वेस्ट बंगाल के साइड का जो एरिया है, वहां पे जो किलिंग्स थी, एट्रोसिटीज थी. ठीक है, एट्रोसिटीज का मतलब भी लाइक किलिंग्स ही समझ लीजिए, टॉर्चर समझ लीजिए, इल ट्रीटमेंट समझ लीजिए. ठीक है, बहुत ज्यादा ये दोनों ही साइड के बॉर्डर्स में जो कॉमन सिटीजन है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी. लोग क्या कर रहे थे, इन द नेम ऑफ रिलीजन दे वर किलिंग अनदर कम्युनिटी. वन लाइक मुस्लिम्स वर किलिंग हिंदूज एंड हिंदूज वर किलिंग मुस्लिम्स जस्ट इन द नेम ऑफ द रिलीजन. ठीक है, दे वर killing it and maimed people of the other community. They injured people of the other community. They wound people of the another community. Okay, so especially the cities of Lahore, Amritsar and Kolkata, these are the three important cities which became communal zones. ठीक है, communal zones बन चुके थे, mass killings हो रही थी, violence increase हो रहा था. ठीक है, Muslims what they were doing, Muslims would avoid going into an area where mainly Hindus were living, and vice versa, Hindus, Sikhs, जहाँ पे Muslims रह रहे थे वहाँ पे Hindus, Sikhs वहाँ पे जाना क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे. स्पेशली जो लाहौर, अमृतसर और कोलकाता का एरिया है, इन साइड में यहाँ पे ये जो एरिया हो गया था, कम्युनल जोन बन चुका था. लोगों के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस जो है देखने को मिला था. Now, obviously, people went through immense sufferings. बहुत सारी sufferings देखने को मिली थी. ठीक है, बहुत सारे tortures, ill treatment और लोगों की injuries देखने को मिली थी. Especially जो minorities थे, both sides, minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. You all know what do you mean by what is refugee. Refugee means a person who leave their country because of the war or because of the unavailability of food. So minorities, especially minorities, were living in the temporary shelter
लाइक रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, एंड जो लोकल पुलिस थी दे दोनों ही दे ऑफन लाइक फाउंड अनहेल्पफुल कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो थी बिल्कुल हेल्पफुल नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही थी कि फॉर एग्जाम्पल सम मुस्लिम्स अगर वो इंडिया में हैं उस टाइम पे एंड वो मुस्लिम्स हैं तो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हेल्पफुल नहीं थी, ठीक है, उन्हें लग रहा था कि ये पाकिस्तान के हैं। तो इवन दे ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप, टॉर्चर देख रहे हो कब एकदम से अटैक कर लिया जाता था, मतलब कि रात को नींद में भी क्या करते थे वो अटैक कर देते थे, लोगों को मार देते थे, ठीक है। बहुत सारे रेप हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड, ठीक है। इलीगली अबडक्टेड का मतलब क्या होता है, इलीगली जब आप किसी को रखते हो, टू होल्ड समवन इलीगली, दैट मीन्स अबडक्टेड। तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर होल्डेड इलीगली ऑन बोथ द साइड, जैसा नहीं एक साइड में, ऑन बोथ द साइड्स उनको क्या किया गया था, इलीगली रखा गया था बॉर्डर के, उनको फोर्सफुली अपना रिलीजन कन्वर्ट करने को फोर्स किया जा रहा था, ठीक है, एंड फोर्सफुली इनको उनसे शादी मतलब मैरिज भी उनकी की जा रही थी। तो वुमेन को भी बहुत ज्यादा क्या है टॉर्चर फील करना पड़ा था, इवन एट द टाइम ऑफ लाइक जब वो क्रॉस बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे थे, उस टाइम पे उस जर्नी में उनको ये सारी चीजें देखने को मिली थी स्पेशली। एंड in many cases women were killed in the name of family honor, कि फैमिली ऑनर मतलब को बचाने के लिए क्या कर रहे थे, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे फादर अपनी डॉटर्स को क्या कर रहे थे, मार रहे थे इन द नेम ऑफ फैमिली ऑनर, कि आगे उनको क्या है प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े, कि या उनके साथ कोई उनको रिलीजन कन्वर्ट या फोर्सफुली मैरिज या उनके साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो, इल ट्रीट ना किया जाए, उनके साथ कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए। So just for that, in many cases, in many family, women were killed. Many children were separated. बहुत सारे बच्चे separate हो चुके थे पेरेंट्स के. Some are in like आपने गदर मूवी में देखा होगा, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे उसी का लग रहा है, उस मूवी का, मे बी मेनी ऑफ यू हैव वॉच दैट मूवी, राइट। तो उसमें क्या है, अमीषा पटेल वो सेपरेट हो जाती है अपनी फैमिली से, ठीक है। इवन आपने देखा भी होगा कैसे टॉर्चर्स आपने देखे होंगे उस टाइम पे, पार्टीशन का जो सीन शो किया गया है। तो मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड, बहुत सारे चिल्ड्रन सेपरेट हो चुके थे अपने पेरेंट्स से, and even some persons were also there who did not manage to cross the border, so they found themselves कि they had no home, कि वो जहाँ रह रहे हैं वो उनका खुद का घर नहीं है, चाहे वो सेंचुरीज से उनके एंसेस्टर्स वहीं रह रहे हैं, बट इवन आफ्टर दैट दे फेल्ट दैट कि नो दिस इज नॉट आवर होम, ठीक है, ये हमारा घर नहीं है, और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाइक हेल्पलेस फील कर रहे थे। So for lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps for months and sometimes for years. ठीक है, रेफ्यूजी कैंप्स अगर ये देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ रेफ्यूजी कैंप, कि रेफ्यूजी कैंप में कैसे लोगों को रखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए जो है, दोनों ही कंट्रीज के जो लोग हैं, दोनों उनके लिए फ्रीडम का मतलब रेफ्यूजी कैंप ही हो चुका था, ठीक है। बहुत कुछ लोग महीनों तक, कुछ लोग सालों तक रेफ्यूजी कैंप में रहे थे। सो कुछ ये सफरिंग्स थे जो क्या है, पीपल वेंट थ्रू दीज सफरिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटीज का हो गया आपका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर नॉट एट ऑल हेल्पफुल, ठीक है। सम पर्सन्स वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड एंड इवन रेप। वुमेन की कंडीशन भी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा मेम्ड हो चुकी थी, ठीक है, वोंडेड हो चुकी थी। So they felt thousands of women were abducted illegally, उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा था, दे illegally उनको होल्ड किया जा रहा था, उनको करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था उनको फोर्स किया जा रहा था अपनी शादी करने के लिए। एंड वुमेन, बहुत सारी वुमेन को
उनकी फैमिली ही क्या कर रही थी, फैमिली ऑनर के नेम पे दे वर किलिंग. And some children also got separated from their children, from their parents, and refugee camps का ये हो गया. नाउ ये हमने बात कर ली थी कि क्या क्या सफरिंग्स लोग फेस कर रहे हैं. सम कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑल्सो देयर. अब देखो, अब राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स इन इंडिया, बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, they expressed their ruthlessness, or they expressed the ruthlessness of the killings, or brutality of the brutalness of the killing. कितना क्रूएल किलिंग्स हो रही है, लोगों की जो सफरिंग्स हैं, लोगों ने क्या क्या सहन किया है, उन सबको हमारे जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, इवन जो सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, वो क्या कर रहे थे, वो शो कर रहे थे. वो शो कर रहे थे, क्या शो कर रहे थे, दे वर शोइंग कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है लोगों की लाइफ में, मतलब क्या ब्रूटलिटी लेकर आई है, क्या सफरिंग लेकर आई है. दे एक्सप्रेस्ड दे एक्सप्रेस्ड these this violence in their novels, short stories, poems, films. जैसे सादत हसन मांडो, उन्होंने भी क्या है, अपनी शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू, अपनी नॉवेल्स के थ्रू उन्होंने भी सफरिंग्स को, पार्टीशन के टाइम की जो सफरिंग्स थी लोगों की, उसको एक्सप्रेस किया है. एक स्टोरी की ट्रांसलेशन है, उर्दू की एक शॉर्ट स्टोरी है, नेम है कासरे नापसी. ठीक है, उस वो आपके बुक में मेंशन भी है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसका, इंग्लिश ट्रांसलेशन उस उर्दू शॉर्ट स्टोरी का आपके बुक में मेंशन है. ठीक है, नेम है आपका उर्दू शॉर्ट स्टोरी का कासरे नापसी. ठीक है, तो बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो है डिस्प्लेसमेंट्स के, वायलेंस के, ठीक है, जो पार्टीशन का ट्रॉमा था, ठीक है, उस सबको अपनी उसे एक्सप्रेस किया है. ठीक है, एंड मेनी ऑफ द सर्वाइवर्स, ठीक है, जो सर्वाइव कर पाए आफ्टर पार्टीशन, दे डिस्क्राइब्ड दिस ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन एज डिवीजन ऑफ हर्ट्स. उन्होंने बोला यहाँ पे टू टेरिटरीज को, यहाँ पे डिवीजन ऑफ कंट्री नहीं हुआ है, टू टेरिटरीज को डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ हार्ट हुआ है, बिकॉज हार्ट्स हुए हैं, बिकॉज so many communities, so many family members, so many families, so many friends, they got disconnected, they got divided. ठीक है, अब उन्हें नहीं पता था कि वो इन फ्यूचर कभी मिल पाएंगे कि भी नहीं मिल पाएंगे. तो सर्वाइवर्स ने जो ये है, इस ट्रॉमा को बोला था, इट इज बेसिकली, इट इज a division of hearts, not only a division of a country. Okay, so the partition was not merely a division of properties. Obviously properties हो गया, even वहाँ पे जब partition हुआ था तो properties, liabilities, assets जितनी है, इन सबका division हुआ था. even political division भी हुआ था country का. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस मतलब जितने भी टूल्स थे, ठीक है, जितने भी वेपन्स थे, इन सबको उन्होंने क्या किया था, टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो पुलिस यूज करती थी, इन सबको उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड किया था. छोटी से छोटी चीज का डिवीजन हुआ था. सो इट वाज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज. कम्युनिटीज का वायलेंटली कम्युनिटीज को सेपरेट किया गया था. सो ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट. 80 लाख पीपल को माइग्रेट किया था अक्रॉस द न्यू बॉर्डर, एंड बिटवीन 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. 5 से 10 लाख, एंड दिस इज जस्ट द अप्रोक्सीमेट फिगर. और बहुत सारी ऐसी भी फिगर, मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस फिगर में इंक्लूड ही नहीं हुए हैं. ठीक है, it is according to the books only कि 5 to 10 lakh people were killed in this partition, which led to which led to violence. So देखा आपने क्या ब्रूटलिटी फेस करने को मिली थी. ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था. ठीक है, कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल असेट्स, टेबल, चेयर, टाइपराइटर्स, इवन टेरिटरीज, इन सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. बट साथ में ही अब एडमिनिस्ट्रेटिव
पार्टीशन के अलावा, कम्युनिटी सेपरेशन के अलावा एक और डीपर इशू था जो पीपल को फेस करना था, पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना था, और वो क्या था? सो बियॉन्ड दिस फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, द पार्टीशन posed another deeper issue, and it was for especially for the leaders of the Indian National Congress. Okay, they like obviously they did not supported that two nation theory, and अब two nation theory को क्या है, मान लिया गया, separate हो चुकी थी अब countries. Now जो लीडर्स थे उनके पास क्या प्रॉब्लम अराइज हुई? ये प्रॉब्लम अराइज हुई कि बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान में चली गई है, लेकिन इंडिया में अभी भी 12% जो टोटल पॉपुलेशन है, इट इज अकॉर्डिंग टू 1951, 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है मुस्लिम की है, मुस्लिम पॉपुलेशन की है. सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन? ठीक है, मुस्लिम सिटीजन्स को, और भी जितने और दूसरे भी रिलीजियस माइनॉरिटीज थे लाइक सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, Parsis, Jews, they were also the minorities, religious minority section. Now the question arises in the front of the citizens, or you can say people, ki how would the government of India treat these minority groups and especially the Muslim citizens? How they will treat it? So ये क्वेश्चन अराइज था, इसे सही करना था. The partition had already created severe conflict between the two communities. Muslims और Hindus के बीच में उन्होंने already बहुत ज्यादा severe conflict arise create कर चुका था. Political जो है competition चल रहा था. पार्टीशन से पहले ही 1940s में ही मुस्लिम्स ने जो है अपनी एक मुस्लिम लीग को फॉर्म कर लिया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी ज्यादा थे इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर. सो इट वाज इन द फोरफ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन, और उन्होंने मुस्लिम नेशन की डिमांड भी कर दी थी. तो अब ऐसे ही बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, इवन हिंदूज के, स्पेशली हिंदूज के और मुस्लिम्स के तो थे ही, और भी रिलीजियस जो माइनॉरिटीज थे उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो चुकी थी. बट बेसिकली दे वर विद हिंदूज ओनली. तो वो क्या करने रहे थे, जितने भी हिंदूज हैं उनको, और trying to organize the Hindus in order to turn into a Hindu nation. वो कोशिश कर रहे थे कि हम हिंदूज को क्या है अपने साथ में रखें, ठीक है, और हम जो है ये नेशन जो है हमारा हिंदू नेशन बनाए, ठीक है. But most leaders of the national movement believe that India must treat persons of all religions. So many communities believed that कि हमें हमारा जो नेशन है हिंदू नेशन होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे हिंदुइज्म को जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं वो उन लोगों का नेशन होना चाहिए. बट ऐसे बहुत से यू कैन से एग्जाम्पल्स देखे गए. हमारे कुछ जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, दे फेल्ट दैट नो, इंडिया मस्ट ट्रीट ऑल persons of all the religions with equality, ठीक है. सेक्युलरिज्म को इसलिए फॉलो भी किया गया था, ठीक है. ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो लिया गया था हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स इसके अगेंस्ट भी थे कि नो, सेक्युलर कंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हिंदू नेशन ही होना चाहिए. बट हम कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हर एक रिलीजन जो है, ऑल द रिलीजन्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है. ऑल रिलीजन्स हैव देयर ओन faith, the citizens have their own faith in their own particular religion, so we should respect that, respect the feelings of the citizens of India, and we should treat all religions with equality. Okay, so many books, so many movies, so many stories are there जो पार्टीशन का जो ये ट्रॉमा है पार्टीशन के ऊपर बना है, डिवीजन के ऊपर बना है. एक एग्जांपल भी है गरम हवा, जो आपके बुक में मेंशन भी है. 1973 की एक मूवी है गरम हवा,
जिसमें जो एक्टर है वो एक्टर्स जो हैं जलाल अगा हैं, ठीक है, गीता सिद्धार्थ है, फारूक शेख है, बलराज साहनी है, ठीक है, कुछ ये एक्टर्स हैं। डायरेक्टर उसके MS साथियों थे। तो उसमें स्पेशली क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है एक सलीम मिर्जा करके एक मैन्युफैक्चरर थे, शू मैन्युफैक्चरर थे जो आगरा से बिलोंग करते थे, एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ ए स्ट्रेंजर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ही फाइंड्स हिमसेल्फ अ स्ट्रेंजर, कि वो अपनी लाइफ काफी टाइम से वहीं पे क्या कर रहा था, स्पेंड कर रहा था, बट फिर भी पार्टीशन के टाइम पे वो अपने आप को स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर फील कर रहा था, लॉस्ट फील कर रहा था, ठीक है, उसका बिजनेस भी बहुत ज्यादा सफर हुआ था ड्यू टू दैट पार्टीशन, ठीक है, एंड a refugee from the other side of partition India occupied his ancestral dwellings। वो जो रेफ्यूजी थे, जो पाकिस्तान से रेफ्यूजीज आए थे उस तरफ से, उन्होंने उसके एंसेस्टर्स की जो ड्वेलिंग्स थी, जो भी घर वगैरह था, वो उसने कैप्चर कर लिए थे रेफ्यूजीज ने। तो बहुत ही ट्रेजिक एंड होता है उस मूवी का, इवन उसकी लाइफ का भी बहुत ज्यादा ट्रेजिक एंड होता है, और वो होप करता है कि एक दिन तो हमारी लाइफ जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो बेसिकली इस पे ये डिसाइड इस टॉपिक पे ये मूवी जो है गरम हवा बनी है, ठीक है। सो गो थ्रू इट, अगर कभी टाइम मिले तो देखना, एंड यू कैन ऑल्सो read some of the stories and novels, like some movies are also there, if you want to say, like 1947 अर्थ हो गई, गरम हवा है, शुभ्रन नरेखा है, these are some of the movies which depict the division of India and Pakistan. Even one of the famous novel is also there. The name of the novel is Mottled Dawn. ठीक है, Mottled Dawn, and it is written by Sadat Hasan Manto, one of the finest writer of 20th century. Okay, if you really want to know more about this partition, so you can go through these movies, and you can go through these books and novels. Okay, so class, this is all about today. Go through the topic, and if you face any problem, you may ask me in my next class. And in our next class, we are going to start our new topic. Next topic, that is Mahatma Gandhi's sacrifice. कि महात्मा गांधी के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और उनका क्या रोल रहा है, क्या सेक्रीफाइस रहा है, we will talk about it. Okay, so thank you so much class. Bye bye, take care of yourself.